طالبان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خطرہ افغانستان میں اونلی افغانستان میں نہیں ہے بلکہ سب ایشیا میں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ القاعدہ بھی ہے، ان کے ساتھ ISS بھی ہے، اور یہ خطرہ سب ایشیا میں ہے، اونلی افغانستان کے لیے نہیں ہے۔ وہ یونٹ ابھی کل وہ لوگ سب ایئر کرافٹ کے ساتھ جہاز کے ساتھ وہ لوگ گیا ازبکستان میں، اور پتہ نہیں ابھی کوئی کنٹیکٹ نہیں ان کے ساتھ، پریزیڈنٹ نہیں ہے ابھی افغانستان میں، وہ کل گیا، پتہ نہیں کہا۔ ہم لوگوں کے ساتھ انڈیا بھی ہیلپ کر رہا ہے، ادھر ان کے لیے افغانستان میں جگہ مل جائے گی، تو یہ سب کے لیے خطرہ ہے، بہت زیادہ خطرہ ہے۔ ایک دن طالبان آ رہا ہے اور سب فلائٹ بھی بند ہو جائے گا اور یونٹ بھی ختم ہوگا۔ انڈیا تو سیف ہے میرے لیے، کیونکہ 9 سال پہلے ایک بار طالبان نے دھمکی دیا اور حملہ کیا میرے گھر پر، اس کی وجہ سے میں نے اپنی فیملی شفٹ کیا انڈیا میں، اور کمانڈو یونٹ میں تھا، ان لوگوں کے لیے زیادہ خطرہ ہے۔ ایک دن نہ ایک دن واپس جاؤں گی، اور وہ تو میرے دیش ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام خواجہ محمد نعیم بارکزئی ہے۔ جی، تو آپ افغان سے رہنے والے ہیں؟ میں افغان سے رہنے والا ہوں، میرے گھر یہاں پہ ہے، اور میں چھٹی کے لیے ادھر آ رہا ہوں۔ میں خود ایک کرنل ہوں، پائلٹ ہوں، ملٹری آرمی ہے۔ جی، تو آپ افغان سے انڈیا کب آئے تھے؟ ایک 20 دن ہوا، جی 20 دن ہوا، ویکیشن کے لیے آیا تھا، جی، اور ابھی سب چیز بند ہے، کیونکہ طالبان نے ابھی افغانستان میں سب طالبان ہیں۔ جب وہاں سے آپ آئے تھے، تقریباً 20 دن پہلے کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس سمے افغانستان کے حالات کیا تھے؟ Actually, may I talk in English? جی، Yeah. At that time was a little bit, we lost some provinces, but day by day, the power of the Taliban goes up, and they got some provinces also. First they started from the villages and from the districts, but right now they have all Afghanistan, except Panjshir province and Parwan province. طالبان سب افغانستان میں ہے، ایک پروان پروونس جو ہے نا اور پنشیر وہاں پہ نہیں ہے، اور جنگ چلتا ہے، لڑائی چل رہا ہے۔ وہ اس یونٹ جو میں کام کر رہا تھا، وہ یونٹ ابھی کل وہ لوگ سب ایئر کرافٹ کے ساتھ جہاز کے ساتھ وہ لوگ گیا ازبکستان میں، اور پتہ نہیں ابھی کوئی کنٹیکٹ نہیں ان کے ساتھ، اور ہم لوگ ابھی انتظار کر رہا ہو کیا کر رہے ہیں۔ لیکن آپ سینا سے ہیں تو کہیں نہ کہیں مطلب ایک ہار ماننے کا کارن کیا رہا طالبانیوں سے؟ طالبان سے تو ابھی تو طالبان ایک ہی پارٹی نہیں ہے، کیونکہ طالبان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خطرہ افغانستان میں اونلی افغانستان میں نہیں ہے بلکہ سب ایشیا میں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ القاعدہ بھی ہے، ان کے ساتھ ISS بھی ہے، اور یہ خطرہ سب ایشیا میں ہے، اونلی افغانستان کے لیے نہیں ہے۔ یہ بڑی اچھی بات نہیں ہے۔ کیا آپ کو امید کس دیش سے تھی کہ وہ ہمارا سپورٹ کرے گا اور کہیں نہ کہیں ہمیں ہیلپ ملے گی؟ ابھی تو امریکہ نے واپس اپنی سنا کو بلا لیا، اور 5000 اور سولجر، امریکن سولجر، وہ لوگ ابھی افغانستان میں ہے، ایئرپورٹ میں ہے، اور ابھی بھی میٹنگ چل رہا ہے گورنر کے پاس۔
अफ़गानिस्तान गवर्नर के पास मीटिंग चल रहा है, मगर प्रेसिडेंट नहीं है अभी अफ़गानिस्तान में। वो कल गया, पता नहीं कहाँ। लेकिन वो एक तरफ तो अपील करते हैं लोगों से घर में सुरक्षित रहने के लिए, लेकिन वो खुद देश छोड़ के चले गए राष्ट्रपति। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि कब लीडर नहीं है जी। तो सब फोर्स, अगर आर्मी फोर्स है, अगर सब फोर्स, सब अभी डाउन है। आपको लगता है कि अफ़गान के हालात पहले जैसे हो पाएंगे, सुधर पाएंगे वहाँ पे? हमको तो थोड़ा सा उम्मीद है कि इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोगों के साथ इंडिया भी हेल्प कर रहा है और अमेरिका भी हेल्प कर रहा है और यूरोप भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि ये ख़तरा सब एशिया के लिए है, और अगर अलकायदा और ISIS इधर उनको लिए अफ़गानिस्तान में जगह मिल जाएगी तो ये सब के लिए ख़तरा है, बहुत ज़्यादा ख़तरा है। एक आप सेना के अधिकारी हैं, तो सबसे पहले आपको जब सिखाया जाता है उसके बाद वो डर आपके जो मन में बैठा और उसके बाद आप देश छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर आप इंडिया आते हैं, तो इंडिया ही क्यों? तो मैं तो इंडिया में इसके वजह से आया था कि मैं ख़ुद एक मेरा थोड़ा सा बीमारी है और मैं मेडिकल के लिए आया था इधर, मेरे सब ट्रीटमेंट के लिए। और मुझे ये पता नहीं था कि एक दिन तालिबान आ रहा है और सब फ्लाइट भी बंद हो जाएगा और यूनिट भी ख़त्म होगा। ये तो अभी हुआ। आप अब तालिबान, क्योंकि यहाँ मेडिकल का आपका एक लिमिट होगा, टाइम लिमिट होगा, उसके बाद आप फिर से तालिबान अफ़गानिस्तान लौटना चाहेंगे या फिर कहीं और जाना चाहेंगे? नहीं, मैं तो अफ़गानिस्तान जाएगा नहीं, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ 2010 से मैं अपनी डिप्टी में हूँ और मैं एक आर्मी पायलट हूँ, स्क्वाड्रन कमांडर हूँ। मुझे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है और अभी इंडिया में रहता हूँ। कब तक देखो, और दूसरा देश में जाऊँगा और आई विल स्टे इन इंडिया। इसी में इंडिया में स्टे करेंगे? हाँ, इंडिया तो सेफ़ है मेरे लिए, क्योंकि 9 साल पहले एक बार तालिबान ने धमकी दिया और हमला किया मेरे घर पर, उसकी वजह से मैंने अपनी फैमिली शिफ्ट किया इंडिया में, और ये 9 साल हुआ कि मेरी फैमिली इधर रहता है। 9 साल से? 9 साल से, हाँ। पूरा फैमिली इधर इंडिया में रहता है? पूरा फैमिली इधर इंडिया में रहता है, हाँ। अगर आप रिलेटिव की बात करें तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में कौन कौन आपके संबंधी रहते हैं? हाँ, मेरे फैमिली मेम्बर उधर है, पापा है, मेरी ब्रदर भी है, कज़न भी है, मगर वो लोग अभी उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बताया कि हम लोग भी कोशिश कर रहा है कि और ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में जाऊँ, हाँ, क्योंकि उनके लिए भी ख़तरा है। ख़तरा है उनके लिए भी, क्योंकि तालिबान उनसे पूछूंगा कहाँ है आपके भैया और कहाँ है आपके सन। उन्होंने मेरे फादर से भी पूछ किया कल, मगर ये अभी तो तालिबान ने बताया कि कोई गवर्नमेंट का पीपल के लिए कोई चीज़ नहीं है, सब माफ़ है, मगर ये एक झूठ बात है। क्या नहीं है? ये बात अच्छा बात नहीं है। वो लोग ऐसे बता देंगे, मगर उन लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आपकी खोज कर रहा है? हाँ। कहाँ है आप? कहाँ हुआ वो सब, not only me but the all unit which we were working, all unit. आपकी लास्ट टाइम आपके फादर से कब बातचीत हुई थी? मेरे एक 10 दिन पहले था, हाँ, फादर से बात किया। क्या बात हुआ उनसे, क्या बताया? वो ऐसे बताया कि अगर आप इंडिया में हो तो मत आओ, क्योंकि सिचुएशन अच्छा नहीं है अभी,
लड़ाई चल रहा है, तालिबान आ रहा है और आपके लिए ख़तरा है अगर आप अफ़गानिस्तान में आ जाएंगे। इसकी वजह से तो अभी मैं इधर हूँ। क्या उनको भी धमकी दी गई है? क्योंकि तालिबानी आप बता रहे हैं कि कल या परसों में कोई तालिबान गए थे, उनसे पूछा था तलाश की, आपकी तलाश है। हाँ, वो लोग तो पूछ रहा है क्योंकि मैंने बताया कि मैं 2003 से डिप्टी में हूँ और हम लोग नाइट मिशन कर रहा था SMW में, स्पेशल मिशन विंग में। इसकी वजह से हम लोग के लिए ज़्यादा ख़तरा है। वो कौन सा समय था कि जब लगातार आपको सीनियर कमांडर जो आपको लगातार तालिबानियों से लड़ने की एक आदेश दे रहे होंगे या निर्देश दे रहे होंगे, लेकिन उसके बाद में वो कौन सा क्षण आया कि जब आपने भी देख लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है सिवाय अपनी जान बचाने के? यूनिट का कमांडर है, वो भी कल उज़्बेकिस्तान में गया एयरक्राफ्ट के साथ, क्योंकि उनके लिए भी ज़्यादा ख़तरा था और उनकी फैमिली भी इधर रहता है मेरे पास इंडिया में। और मैंने एक बात बताया कि वहाँ एक तालिबान नहीं है, तालिबान के साथ ज़्यादा, इसके वजह से हम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरा है। इंडिया में अभी आपको खतरा है, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हम लोग इंडिया में सेफ हो और मेरे कांटेक्ट इंडियन ऑफिसर्स में है, क्योंकि जो मैंने वीज़ा लिया इंडियन एम्बेसी से लिया अफ़गानिस्तान में, और उधर एक जो इंडियन आतशा है उनके साथ मेरे कांटेक्ट भी है। और अभी भी कल भी मैंने बात किया उनके साथ कि अगर मेरे वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँ, और वो लोग देख रहा है तो find a way for me to stay in India. अगर बात करें हम नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री या फिर वर्ल्ड लीडर कोई भी हो, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे अफ़गानिस्तान की बेहतरी के लिए? एक्चुअली अफ़गानिस्तान की बेहतरी के लिए तो अभी सब जो फोर्स था, आर्मी फोर्स था और स्पेशल फोर्स था, सब गया था, सब ख़त्म है, अभी कोई चीज़ नहीं है। मगर हम लोग कोशिश कर रहा है कि इंडिया की हेल्प से और अमेरिका से, यूरोप से इस ख़तरा को अफ़गानिस्तान से बचाऊँ। इंशाल्लाह एक दिन हम लोग कोशिश कर रहा है। क्या आज भी आपके फादर की जान को खतरा है? नहीं, वो लोग अभी इतना ख़तरा में नहीं है, क्योंकि वो लोग सिविलियन लोग हैं। सिविलियन लोग से तो ज़्यादा ख़तरा है नहीं। हर आदमी जानता है कि क्या करेगी और उनका जॉब क्या है, और हर आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अफ़गान में अब तालिबान का कब्ज़ा होने के बाद सबसे ज़्यादा अगर ख़तरा है तो वो किस पे है? सामान्य रहने वाले लोगों पे है, या पॉलिटिकल लोगों पे है, या फिर सेना के ऑफिसर्स पे है, या फिर सरकार में काम करने वाले लोगों पे है? किस पर है? ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो आर्मी में था और कमांडो यूनिट में था, उन लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरा है। और सिविलियन लोग तो सिविलियन है सब। तो हम लोग को तो ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरा ये है कि ये तालिबान के साथ ISI जो पाकिस्तान का एक इंटेलिजेंस सेक्शन है, वो लोग काम कर रहा है कि ये हम लोग के लिए अच्छा भी नहीं है और हम लोग खुश भी नहीं है इसके साथ, खुश नहीं है। कितना दुख होता है अफ़गानिस्तान जिसकी रक्षा के लिए आपने कसम खाई थी और आज उसी की रक्षा नहीं कर पा रहे? बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस ये लड़ाई ख़त्म करवा दूंगा अफ़गानिस्तान में। एक दिन ना एक दिन वापस जाऊंगी और वो तो मेरे देश है, मैं भी अलग नहीं हूँ, अलाम नहीं हूँ। मेरे साथ और यूनिट है, मेरे साथ और पीपल है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट इमारात से आ रहा था तालिबान के साथ, और
इंशाल्लाह एक दिन हो जाएगा, अफ़गानिस्तान वापस आएगा अपनी जगह में। अपनी जगह में हाँ इंशाल्लाह आ जाएगा। ये वही ऑफिसर हैं अफगानिस्तान के जिन्होंने सेना में भर्ती होने से पहले देश की रक्षा की कसम खाई थी और सौगंध ली थी, लेकिन आज वही ऑफिसर अपनी जान देश की रक्षा करने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। हालांकि इन्होंने हिंदुस्तान में आकर के शरण ली है, अपने परिवार के साथ में है, लेकिन आज भी इनकी पूरी फैमिली को जान का खतरा है।